علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد اجالے کیوں نہ ہو دیوار و در میں 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 میں ذکر مصطفیٰ کرتا ہوں گھر میں میں ذکر مصطفیٰ کرتا ہوں گھر میں چلا ہوں سوئے دربار رسالت چلا ہوں سوئے دربار رسالت ہے میرے ساتھ ایک خوشبو سفر میں ہے میرے ساتھ ایک خوشبو سفر میں اجالے کیوں نہ ہو دیوار و در میں وہ جیسے ہے کوئی ویسا نہیں ہے وہ جیسے ہے کوئی ویسا نہیں ہے یہی لکھا ہے تاریخ بشر میں یہی لکھا ہے تاریخ بشر میں اجالے کیوں نہ ہو دیوار و در میں ذکر مصطفیٰ کرتا ہوں گھر میں انہی کے نور سے تابا ہے سورج انہی کے نور سے تابا ہے سورج انہی کی بھیک کش کو لے کمر میں انہی کی بھیک کش کو لے کمر میں اجالے کیوں نہ ہو دیوار و در میں ذکر مصطفیٰ کرتا ہوں گھر میں یہاں پہ مانگے ملتا ہے گدا کو یہاں پہ مانگے ملتا ہے گدا کو نہیں کوئی بدر ایسا نظر میں نہیں کوئی بدر ایسا نظر میں اجالے کیوں نہ ہو دیوار و در میں ذکر مصطفیٰ کرتا ہوں گھر میں انہی کے نور سے تابا ہے سورج انہی کے نور سے تابا ہے سورج انہی کی بھیک کش کو لے کمر میں انہی کی بھیک کش کو لے کمر میں اجالے کیوں نہ ہو دیوار و در میں ذکر مصطفیٰ کرتا ہوں گھر میں مدینے جاؤں آؤں پھر سے جاؤں مدینے جاؤں آؤں پھر سے جاؤں خدا تا عمر رکھے اس
سفر میں خدا تا عمر رکھے، اس سفر میں اجالے کیوں نہ ہو دیوار در میں، میں ذکر مصطفیٰ کرتا ہوں گھر میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان کریم میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، رمضان المبارک کے آغاز سے ہی آج ہم 2 رمضان المبارک کی یہ ٹرانسمیشن آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ رمضان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اس کا رمضان المبارک کا پہلا عشرہ جو ہے وہ عشرہ رحمت ہے، یعنی اس میں رحمت کے برکت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ دوسرا عشرہ جو ہے وہ عشرہ مغفرت ہے، اور پھر تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا عشرہ ہے۔ اس طرح سے ان 3 عشروں میں ہم نے جو ہے وہ رمضان المبارک کو بانٹا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا، جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا، نہ صرف ایک مقام پہ بلکہ کئی مقامات پہ اس کا اعلان اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا گیا ہے کہ خاص طور پہ اس کی جو آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات شب قدر ہے، جس کے حوالے سے سورہ قدر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تمہیں کیا معلوم شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی یہ ایک رات رمضان المبارک کی ایسی رات ہے جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اسی مہینے میں کہا جاتا ہے کہ تقریباً تمام ہی جو آسمانی صحیفے ہیں وہ رمضان المبارک میں نازل ہوئے ہیں۔ تقریباً تمام ہی ایسے لوگ، ایسے مذاہب جو آسمانی صحیفوں پر ایمان رکھتے ہیں، وہ زیادہ تر ان کے ہاں بھی رمضان میں روزوں کا تصور بھی موجود ہے۔ روزوں کے حوالے سے جب مسلمانوں پہ روزے فرض ہوئے تو خاص طور پہ ایک بات یہ کہی گئی کہ جی جو مسلمانوں کے اور دوسرے روزوں میں جو فرق ہے وہ سحری ہے، اسی لیے سحری کرنے کا حکم دیا گیا اور افطار بھی کرنے کا حکم دیا گیا۔ یعنی یہ نہ ہو کہ یہ ایک فاقے کی طریقے سے گزر جائے کہ آپ نے نہیں کھایا، رات میں بھی نہیں کھایا، صبح بھی نہیں کھایا، دوپہر بھی نہیں کھایا، شام، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب تک حکم دیا اس وقت تک کھانے کا حکم ہے، اور جو بیچ میں جو وقفہ دیا گیا ہے جس میں آپ نہیں کھا سکتے، اس دوران آپ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کھا سکتے ہیں۔ اس میں حلال چیزیں بھی جو ہیں آپ پر حرام ہو جاتی ہیں، وہ تمام حلال چیزیں دنیا میں موجود ہوتی ہیں وہ تمام حرام ہو جاتی ہیں، بس آپ سانس لے سکتے ہیں یا اپنے روزمرہ کے کام ضرور کرتے ہیں، لیکن باقی چیزیں جو ہیں وہ منع ہوتی ہیں۔ بہرحال ناظرین، آج کے پروگرام میں ایک تو ہم یہ بات کریں گے کہ یہ جو روزے میں کہا جاتا ہے کہ تقوی اس سے حاصل ہوتا ہے، تو تقوی کیا ہے؟ یعنی ایک طرف تو صراط مستقیم کے لیے کہا جاتا ہے بڑی مشکل راہ ہے، یہ اس میں آسان نہیں ہے چلنا، دوسری جانب تقوی اختیار کر لینا ہے تو کیا یہ ایک اور منزل بلند چیز ہے، اور جس طرح اللہ بھی فرماتا ہے کہ تم میں سے وہ لوگ بہتر ہیں جو کہ تقوی پہ ہیں یا جو زیادہ پرہیزگار ہیں، متقی ہیں۔ اس حوالے سے بات کریں گے، اور عشرہ رحمت کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ممتاز عالم دین ہیں الحاج مفتی محمد شاہد نعیمی صاحب، شیخ الحدیث اور تفسیر، ایم اے عربک، ایم اے علوم اسلامیات، فارغ التحصیل الشہادت العالمیہ تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان، اور یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ خاص طور پہ دارالعلوم مجددیہ نعیمیہ سے مدرس جو ہے فار مدرس نظامی، اور دارالعلوم قادریہ شبانیہ ایز مدرس فار درس نظامی، جامعہ نعیمیہ اور دارالافتاء سے ایڈمنسٹریٹر اور فتویٰ کے جو عہدے پہ فائز ہیں۔ مفتی صاحب کو خوش آمدید کہنا چاہیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب بہت بہت شکریہ سر، بڑا طویل تعارف ہے آپ کا، لیکن ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ترقی عطا فرمائے۔ ناظرین، اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی شبیر قادری صاحب۔ السلام علیکم مفتی صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں سر، بہت بہت شکریہ آپ بھی تشریف لائے۔ نعت خواں ثنا خواں عبید اللہ کمال ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم، خیریت سے عبید صاحب؟ اور ابھی آپ نے سماعت فرمایا ہوگا کچھ میرے آنے سے کچھ دیر قبل جو ہے یہ نعت خواں سعید احمد مدنی اپنی جو ہے وہ ہدیہ نعت پیش کر رہے تھے۔ السلام علیکم، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، خیریت سے؟ آپ فرسٹ کلاس ہیں جی۔ مفتی صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، تقوی کیا ہے؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
इन्न अल्लाह मअल्लज़ीना इत्तक़ौ वल्लज़ीना हुम मुहसिनून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मौला यस्सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। तकवा मोमिन का ज़हद राह है, तकवा मोमिन का शिआर है, तकवा उखरवी निजात का जरिया है। अल्लाह जल्ला मजदूर ने इंसानियत की रहनुमाई और उसकी हिदायत के लिए कम व बेश 1,24,000 अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम को मबूस फरमाया, ताकि अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम की ज़िंदगी को देखकर दुनिया वाले उस तकवे को हासिल कर सकें कि जिसकी मुराद अल्लाह जल्ला वाला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाई है। अल्लाह ने फरमाया, बेशक वो लोग जो तकवे के साथ हैं, तकवे वालों के साथ हैं, और वही लोग नेकी करने वाले हैं और नेकी को पसंद करने वाले हैं। अगर देखा जाए तो तकवे के एतबार से तो तकवा मोमिन की जिंदगी को फसाद से, मासियत से उठा करके अल्लाह की बंदगी की तरफ कर देता है, और तकवे से ही से इंसान अल्लाह की बारगाह में सुरखरू होता है। और जब तक तकवा इंसान की ज़िंदगी में ना आए तो इंसान इस दुनिया के अंदर उस भटकी कौम की तरह रहता है कि जिसके मुतालिक अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वो लोग जो दीन और इस्लाम से भटके हुए हैं। मुसलमान अपने आप को कहलाते हैं, मोमिन अपने आप को कहलाते हैं, जब तक ईमान और तकवे की ज़िंदगी उनको हासिल नहीं हो सकती तो वो किसी तरीके से राह रास्त की तरफ नहीं आ सकते। तो तकवे का मतलब यही है कि इंसान तकवे की ज़िंदगी को हासिल करके अपने आप को अल्लाह की बारगाह में सुरखरू करता है। तो रमज़ान का जो महीना हमें नसीब हो रहा है, इस रमज़ान के रोज़े की हर साथ हमें तकवे की तरफ, तकवे का दर्ज दे रही है। ए बंदा मोमिन, अपने दिल को अल्लाह और उसके रसूल के ताबे करके अपनी ज़िंदगी को दुनिया के उन मशगूलियात से बचाकर अल्लाह के दीन की तरफ अपने आप को साबित कदमी के साथ पेश कर दी। यही तेरी ज़िंदगी का, यही तेरी दुनिया में आने का मकसद और महवर है। सुभान अल्लाह, बहुत सही फरमाया आपने। अच्छा, अब हम शब्बीर साहब से भी जानना चाहेंगे। सर, कहते ये हैं कि रोज़े का जो असल मकसद है वो तक़वा है, यानी कोई शख्स रोज़ा रखे और वो कि वैसे तो रोज़े में जो हुक्म है वो तो ना खाने पीने का है और दूसरी जो आदत है उनसे परहेज़ का है, लेकिन इसका जो क्योंकि मकसद असल रूह तक़वा है, तो अगर कोई तक़वा पे ना हो, यानी दूसरों को ईज़ा पहुंचाना या कोई ऐसी बातें दिल आज़ारी वाली कर देना, हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में झुंझला जाते हैं रोज़े की वजह से, भूख और प्यास की वजह से, या ऐसे बहुत सी चीज़ें से लोग ऐसी चीज़ों से दूर होते हैं जिनकी उन्हें आदत हो गई होती है, जैसे तंबाकू नोशी, दीगर चीज़ें। तो इंसान चिड़चिड़ाहट का शिकार रहता है। ट्रैफिक में हमें चिड़चिड़ाहट नज़र आती है, बाज़ारों में चिड़चिड़ाहट नज़र आती है, रोज़मर्रा ज़िंदगी में घर में भाई बहनों के दरमियान चिड़चिड़ाहट नज़र आती है। क्या कहेंगे सर, क्या रोज़ा ऐसा रख लेना और दूसरों को तकलीफ़ पहुँचाना, तो फिर जब तक़वा हासिल नहीं हो तो क्या ऐसा रोज़ा कबूल हो सकता है? करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए इस तरह के जैसे तुमसे पहले पर फ़र्ज़ किए गए थे। वजह ताकि तुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ, परहेज़गार हो जाओ। अच्छा, अब जो आपने मतलब सवाल किया कि रोज़े की वजह से मतलब तबीयत में एक चिड़चिड़ाहट और एक मतलब क्योंकि अपनी डेली रूटीन की वजह से जो कामों से दूर होना, तो ये एक सबब बनता है चिड़चिड़ाहट का, लड़ाई झगड़े का। तो देखें, ये जो बात अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाई कि रोज़ा इसलिए फ़र्ज़ किया गया कि तुम परहेज़गार हो जाओ। अच्छा, रोज़ा जो सबसे मेन जो हमें दर्ज देता है वो है सब्र का, ठीक है ना। अब सब्र एक ऐसी चीज़ है, जाहिर सी बात है कि अगर मुझे आपकी बात या आपको मेरी बात नागवार गुजर रही है, अगर मैंने उस पर रिएक्शन कर दिया, आपके एक्शन पर मैंने कोई रिएक्शन कर दिया, तो फिर तो ये सब्र ना रहा ना।
صبر تو ہے ہی وہ چیز کہ سامنے والے کے ایکشن پر اگر آپ کو کوئی چیز ناگوار گزر رہی ہے اور آپ اس چیز کی طاقت بھی رکھتے کہ آپ ریئیکشن کریں، اس کے باوجود اپنے آپ کو روکے رکھنا کسی چیز سے اور اسپیشلی کسی ریئیکشن سے، یہی تو اصل صبر ہے نا۔ تو یہ مطلب روزے کی وجہ سے کسی کو کہہ دینا کہ آپ نے دیکھا عموماً ہمارے ہاں سوسائٹی میں اس طرح کے الفاظ اور جملے استعمال کیے جاتے ہیں کہ بھائی دیکھو میرا روزہ ہے، مجھ سے مطلب زیادہ بحث نہیں کرو، میں مطلب آپ کو چھوڑوں گا نہیں اور زیادہ برداشت نہیں کر سکتا، یار میرا مطلب دماغ خراب نہیں کرو، مطلب اس طرح کے جملے استعمال کیے جاتے ہیں روزے کے لیے، تو جو کہ انتہائی نامناسب ہے۔ بھئی روزہ تو دے ہی صبر کا درس رہا ہے، اور روزے کی حالت میں ہی صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا تو پھر روزے کا کیا فائدہ رہا؟ بالکل کیا فائدہ رہا؟ تو اب روزہ جب صرف بھوک پیاس اور کھانے پینے یا نفسانی خواہشات سے رکنے کا نام نہیں ہے، صرف یہ نہیں ہے، بلکہ احادیث کریمہ میں اس طرح کا مفہوم موجود ہے کہ تمہاری آنکھ کا بھی روزہ ہو، تمہارے کان کا بھی روزہ ہو، تمہارے ہاتھ کا بھی روزہ ہو، ایسا روزہ رکھو کہ تمہارے جسم کے ہر اس کا روزہ ہو، ہر باڈی پارٹ کا روزہ ہو۔ تو اب اس میں کیا ہے، آنکھ کا روزہ کیا کہ مطلب بندہ سارا دن آنکھیں بند کر کے بیٹھا رہے؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنی آنکھوں سے کچھ غلط نہ دیکھے، فحش نہ دیکھے۔ کانوں کا روزہ کیا، کانوں میں انگلی ڈال کر بیٹھ جائے سارا دن کہ بھئی کانوں کو استعمال نہیں کرنا میرا روزہ ہے؟ نہیں، بلکہ مقصد کیا کہ اس سے کچھ غلط نہیں سننا۔ زبان کا روزہ کسی کی غیبت چغلی حسد تکبر اور گالی گلوچ ان چیزوں کو استعمال زبان سے نہیں کرنا۔ تو اب مین جو پرپز ہے روزہ رکھ لینا کہ روزہ رکھ کر تقوی حاصل کرنا، اور روزے کا جو درس ہے صبر وہی نہ ہو تو پھر روزے کا پھر فائدہ نہیں ہے، وہ تو پھر بھوکا پیاسا سارا بغیر دن روزہ نہیں ہے، اس کے اپنے اعمال بھی ٹھیک ہے۔ چلیں عبید اللہ کمال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ سے درخواست کروں گا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں، اسی کے ساتھ ہمیں بریک پہ بھی جائیں گے جی۔ جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، کہاں میں کہاں مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، محمد کی
जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो वन न्यूज़ की खुसूसी नशरियात रमज़ान करीम। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती शाहिद नईमी साहब। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती शब्बीर कादरी और सैयद उबैदुल्लाह कलाम हमारे साथ मौजूद हैं। साथ साथ जो हैं वो एक और नातख़्वाह हमारे साथ बड़े अच्छे से हैं, सईद साहब, ये भी मौजूद हैं। आपको भी खुशामदीद कहते हैं। बहरहाल नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी तक़वा के हवाले से, रोज़ों के हवाले से। अच्छा, आप अगर हमें कॉल करना चाहें तो हम लाइव कॉल का जो बैंड है वो भी चलवा देते हैं। MCR से मैं कहूँगा लाइव कॉल का बैंड भी चलवा दें, ताकि अगर कोई शख्स कॉल करना चाहे, कोई मसले मसाइल रोज़ों के दरमियान हो, लेकिन ऐसे हो जो मुहज़्ज़ब हों। ऐसे मसले ना पूछ लीजिएगा कि जिनके हवाले से हम सवाल का जवाब ना दे, वो आप अलग से मुफ्ती साहब से जो है ना वो कॉल करके अलग से पूछ सकते हैं, लेकिन ऑन एयर ना पूछिएगा। या अगर कोई ऐसा सवाल पूछा गया तो उसका जवाब मुफ्ती साहब अलग से आपको दे देंगे, क्योंकि दीन में बहुत सारी चीज़ें मख्फी होती हैं और बहुत सी चीज़ें एलानिया होती हैं। हम मसाजिद में भी जब जाते हैं और कोई ऐसा मसला दरपेश हो जाता है तो बाज़ चीज़ें हम इमाम साहब से जो है रहनुमाई के लिए तन्हाई में भी पूछ लेते हैं, ताकि कोई ऐसी चीज़ जिससे अगर मायूब लगे तो आप तन्हाई में उसका, तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें। सोशल मीडिया वगैरह या बाकी चीज़ों में एक जो चीज़ नेगेटिव है या मनफी है वो ये है कि लोगों में शर्म जो है ना वो ख़त्म होती जाती है, और लिहाज मुलाहिज़ा, और अगर ये शर्म माशरे से ख़त्म हो जाएगी तो फिर बहुत मसले मसाइल हो जाएंगे। यही फ़र्क है वेस्ट में, मगरिब में और हम में। हमारी जो अक़दार, जो शर्म, जो लिहाज, जो मुरव्वत थी, वो हमसे ख़त्म होती जा रही हैं, और अगर ये अच्छाइयाँ माशरे से ख़त्म हो जाएँ और बुराइयाँ मुआशरे में आ जाएं तो फिर मुआशरा पनपने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। अब मुफ्ती साहब आपसे जानना चाहूँगा, मुझे बताइएगा रोज़े के दौरान सोशल मीडिया का इस्तेमाल, फेसबुक, बाकी चीज़ें देखना, क्या ये दुरुस्त है या नहीं है, ये बताएं। अब देखिए, रोज़ा जो नाम है तकवे का, परहेजगारी का, सब्र का, जहाँ तक अल्लाह जल्ला वाला ने एक रोज़ेदार को रोज़े की हालत में वो तमाम तर चीज़ें जो हलाल हुआ करती हैं उनको भी मना फरमा दिया है, हराम फरमा दिया है। अब चाहे जाए कि ये कि कोई ऐसे काम दीन और शरीयत से हटकर हो तो वो वैसे ही मना है। टीवी देखा जा सकता है, ये बताएं। टीवी देखा जा सकता है, लेकिन न्यूज़ देखने के लिए देखा जा सकता है, देख सकते हैं उसके अंदर, बट सारा वो मसला ही ना, न्यूज़ देखने बैठते उसमें भी मतलब इंटरटेनमेंट न्यूज़ आ जाती है, क्या जो एडवर्टाइज आते हैं तो उससे भी इंसान इज्तिनाब करे, बचना चाहिए, बचना बेहतर है, तो अपने रोज़े के अंदर उसको रूहानियत हासिल हो सके। सही बात। अब रोज़ा रख कर मैं सारे वो दुनियावी काम करूं जिससे मेरे रोज़े की रूहानियत ख़त्म हो रही है, तो एक तो रूहानियत का ख़त्म होना, और दूसरा ये है कि जिस मकसद के लिए रोज़ा हमने रखा है तक़वा हासिल हो जाए, वो चीज़ हमको हासिल हो ही नहीं, फोत हो ही जा रही है, तो उससे हमें कोई उससे फ़ायदा, कोई नफ़ा हासिल नहीं हो सकता, ना दुनियावी ना दीनी। तो लिहाजा कोई ऐसा वर्क जिससे शरीयत के अंदर माने हो और मना किया जा रहा हो तो हर उस काम वो चीज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है मुफ्ती साहब, आपसे जानना चाहूँगा, देखिए हर शख्स के यानी उसकी कुदरत में कुछ लोग होते हैं, चाहे घर के काम वाले क्यों ना हो, कोई ऑफिसेज होते हैं तो उसमें मुलाजमीन होते हैं, और बड़ी चीज़ें होती हैं उसमें लोग होते हैं। रमज़ान के दौरान काम में नरमी करने का कितना हुक्म है और उसका क्या सवाब है? मैं ख़ास तौर से चाहूँगा वो लोग जो देख रहे हैं जिनके घरों पे लोग काम करते हैं और वो रमज़ान मुबारक में काम बढ़ा देते हैं, वो कहते हैं नहीं ये तो रमज़ान है भाई, ये तो हमें तो रोज़े रखने हैं, तो अब तो नॉर्मल काम जो हम करते थे वो भी तुम्ही ने करने हैं, सफाई ज़्यादा करनी है, अब पहले अगर दो टाइम सफाई तो अब 3 टाइम करनी है इफ्तार के। क्या इसमें क्या हुक्म है कि आपको अपने जो लोग आपके ज़ेर असर काम कर रहे हो उनको आसानियाँ किस तरह फराहम करनी चाहिए और क्या सवाब मिलेगा इससे? बिल्कुल, एक तो सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है, जिसका मफ़हूम ये है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो कोई रमज़ान में अपने मुलाजिम पर काम में तखफीफ करे, यानी उसको आसानी दे। मिसाल के तौर पर वो पहले 6 घंटे काम करता था, अब पता है कि भाई वो रमज़ान है, वो भी रोज़े से है, अब 6 के बजाय ठीक है भाई तुम 4 घंटे में जितना काम हो सकता है ठीक है, बाकी फिर बाद में देख लेंगे। तो जो कोई अपने मुलाजिम को रमज़ान में
रोज़े की वजह से तखफीफ दे तो अल्लाह तबारक व ताला उसका ठिकाना जन्नत में बना दे। सुभान अल्लाह, क्या ये मफहूम है हदीस का। तो आज देखा ये जाए, चाहे हमारी कंपनीज हों, ऑफिसेज हों या घर में काम करने वाले मुलाजमीन हों, तो जो माफौक लोग होते हैं, जो मैनेजमेंट होती है, वो ये कि भाई आप रमज़ान में जो है वो चूँकि टाइम होता है, आपने लंच भी नहीं करना। वैसे तो उमूमी मतलब नॉर्मल डेज़ में तो 1 घंटा लंच टाइम होता है, तो चले रिलैक्सेशन मिल जाता है वर्कर्स को। अब लेकिन यहाँ क्या होता है, रमज़ान में भाई लंच तो करना नहीं है आपने, तो वो 1 घंटा भी जो है ना उनसे वर्किंग ली जाती है। तो अब बजाय इसके कि होना तो ये चाहिए कि भाई 8 घंटे आप डेली बेसिस पे नॉर्मल डेज में आप वर्किंग करते हो, उसमें भी 1 घंटा आपका जो है वो लंच टाइम का होता है, रिलैक्सेशन का होता है, यानी टोटल आप 7 घंटे काम करते हैं देखा जाए तो। अच्छा, अब रमज़ान में होना तो ये चाहिए कि भाई अब 7 के बजाय आप 6 घंटे कर दें। हाँ। उसमें आप ज़ोहर की नमाज भी पढ़ें, वही सारा टाइम आपका हो, ताकि आप, क्योंकि उमूमन हमारे माशरे में ख़वातीन भी कंपनीज़ वगैरह और ऑफिसेज़ वगैरह में काम करती हैं, और उमूमन उनको घर जाकर भी दीगर अपने काम वगैरह करने होते हैं, जैसे सहरी का एहतमाम करके आना और फिर घर जाकर इफ्तारी का एहतमाम करना। तो ये मैनेजमेंट को चाहिए कि अपने टाइम में बिलखुसूस वो थोड़ी सी तखफीफ कर दे भाई 6 घंटे। अच्छा, अब इसके साथ ये भी ना कि भाई अब आपने 6 घंटे काम किया तो सैलरी भी 6 घंटे की मिलेगी। नहीं, ये गलत। ये डिडक्शन भी मतलब सैलरी ज्यादा होनी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बोनस भी होना चाहिए कि भाई अच्छे से अच्छे अंदाज में बंदा जो है वो अपने सहरी इफ्तारी और दीगर ईद के मामला बहुत सी इदारे जो है 2 सैलरियां दे देते हैं जी, ये बोनस के तौर पर एक सैलरी दी जाती है। तो 1 घंटा जो तखफीफ या 2 घंटे जो तखफीफ दी जा रही है, तो इसमें सैलरी भी पूरी होनी चाहिए। ये नहीं कि भाई आपने 6 घंटे काम किया तो अब आपको जो वो सैलरी डिडक्ट होके मिलेगी। तो इंशाल्लाह अच्छा, इस पर अगर नज़र वही हदीस की तरफ रखा जाए तो एम्प्लॉय को भी जो है वो एक फैसिलिटी अवेल कर सके। लेकिन एम्प्लॉयज को भी तो चाहिए ना फिर दिल लगा के काम करें। ये भी तो मसला है कि सैलरी ले लेते हैं, सब कुछ हो जाता है, लेकिन काम दिल लगा के नहीं करते, गलतियां कर रहे होते हैं। क्या कहेंगे मुफ्ती साहब? बिल्कुल, जितने भी वर्कर्स हजरात होते हैं उनको भी चाहिए कि हम दिल लगाकर अपने जो काम इदारे हैं उनको काम दिलजोई से किया जाए। सही बात। फिर ये करते हैं काम ना किया जाए, फिर उम्मीदें बड़ी बड़ी रखते हैं मैनेजर से, हजरात से, या अपने सुपरवाइजर से, या अपने मालिकान हजरात से। फिर वो बदगुमानियों के दफ्तर खुलते हैं। बिल्कुल सही बात। फिर ये डेली शाम में खुल जाता था। जी, वो दिल आजारियों का सबब बनता है, जिससे बहुत से मामला खराब होने का खदशा रहता है। हर इदारे में शाम के औकात में और वर्कर्स जितने भी हैं, ये दोनों आपस में लाजिम और मलजूम है। अच्छा सर, वर्कर्स में एक दूसरे का मजाक उड़ाना, इसके हवाले से क्या हुक्म? मजाक उड़ाना तो कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि मजाक, मस्खरी उड़ाना, ये तो इस्लाम यानी तज़लील करना किसी की, ये सब ज़माना जाहिलियत में पाया जाता था। अल्लाह जब रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुनिया में तशरीफ आवरी हुई तो अल्लाह जल्ला वाला ने एक मोमिन का दूसरे मोमिन पर इतना हक रखा है कि दोनों एक दूसरे के लिए मुहतरम है, ना कि किसी का मजाक उड़ाया जाए, ना किसी का मस्खरी उड़ाई जाए। हर एक का, जिसे हम कहते हैं एहतराम मुस्लिम, तो एहतराम मुस्लिम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सूरह हुजरात शरीफ के अंदर अगर इसका मुताला किया जाए तो ये पूरी सूरह करीमा जो है, इसके अंदर इंसान की रहने सहने रवादारी सारा का दर्स मिलता है। सही ये बात। चीजें तब होंगी जब हम अपनी मजलिसों में उलमा के साथ उठेंगे, बैठेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मुफ्ती साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाएँ, और ऐसा मुमकिन नहीं है कि आपको जो है यहाँ से ऐसे जाने दें। कुछ गिफ्ट हैम्पर, आप बैठे तशरीफ़ रखें। एक तो ये मज़ेदार हलीम का गिफ्ट पैक, ये आपके लिए दिया जा रहा है, साथ साथ नेल्सन की जानिब से ये गिफ्ट हैम्पर आपको दिया जा रहा है, नेल्सन पेंट्स की जानिब से। ठीक है सर। और बाकी सर मज़ेदार हलीम का मुफ्ती साहब आपके लिए गिफ्ट हैम्पर है, और साथ साथ नेल्सन पेंट्स की जानिब से आपके लिए भी गिफ्ट हैम्पर है। अच्छा, और आपके लिए सर ये उबैदुल्लाह साहब, ये गिफ्ट हैम्पर आपके लिए, और ये मज़ेदार हलीम की जानिब से सईद साहब आपके लिए गिफ्ट हैम्पर है। ठीक है जी, थैंक यू। और जी चलें आप। अच्छा, इसके अलावा एक गिफ्ट हैम्पर और भी है। हाँ, आपको तो अजवा का कल मैं दे चुका हूँ ना। जी जी मुफ्ती साहब, ये अजवा की जानिब से आपको गिफ्ट हैम्पर दिया जा रहा है।
تو ناظرین اس طرح یہ جو ہمارا سیگمنٹ ہے یہ اختتام پر پہنچتا ہے. آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اب یہاں سے ناظرین ہم آپ سے اجازت لیں گے. اب آپ کو جب ہم جوائن کریں گے 5 بجے کے بعد تو پھر کچن سیگمنٹ ہوگا, افطار کے پکوان, اور میڈم سمینہ جلیل ہمارے ساتھ ہوں گی, بڑے زبردست پکوان بناتی ہیں. آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. مفتی شاہی صاحب, مفتی شبیر قادری صاحب, عبید اللہ کلام صاحب اور آصف جو سعید صاحب جو ہیں, آپ کا بہت بہت شکریہ. بہرحال ناظرین اس کے ساتھ ہی یہاں ہم ایک وقفہ لینا چاہیں گے. وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے رمضان کریم.